Good morning, everyone. I hope you all are safe at your places. So, today we are going to start our second chapter of your social science book, that is Mountains and Plateaus in India. In our last class, in, we have talked about maps. Okay, we have learned about maps and we have little bit talk about globe also. Now, in this chapter, we are going to study about mountains and plateaus in India. Okay, so we'll take a little bit idea what we are going to study in this chapter. We are going to study about the northern mountains. Okay, life in the Himalayas. You all have mm, hear about something Himalayas. Okay, so what is how the life of Himalaya is and Himalayas में life कैसी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे. The peninsular plateau. Now, what is a peninsular plateau? What is a plateau? You all are very new to these terms, so we will talk about these things. What are plateaus? What are peninsular plateaus? And how what is the life in the plateau region में life कैसी होती है. Okay, basically we will talk about landforms. Okay, landforms, different landforms होते हैं, उनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. So let's get started. India is home to the Himalayas, one of the largest mountain ranges in the world. Okay, so हम देखते हैं Himalayas. First of all, listen to the pronunciation और pronunciation सुनने के बाद please उसको repeat कीजिएगा. What is this? How we pronounce it? Himalayas. Okay. The word Himalaya means abode of snow. हिमालय का मतलब क्या है? हिमालय का मतलब होता है abode of snow, ऐसी जगह जो स्नो से कवर्ड हो. The Himalayas are a mountain ranges in South Asia. South Asia में एक mountain range का नाम क्या है? Mountain range है, उसका नाम क्या है? Himalayas. It is the highest range in the world. सबसे बड़ी range है, ठीक है? ये जो world में सबसे बड़ी range है, सबसे highest range है. This range is also home to nine of the 15 highest peaks in the world. ठीक है, वर्ल्ड की इसकी टोटल हाईएस्ट पीक्स कितनी है? 15 पीक्स है, उसमें से 9 जो है वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक्स में आती है. माउंट, ठीक है, इंक्लूडिंग द माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट जो है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है ना, तो हिमालयाज में ही क्या है? माउंटेन है, ये माउंट एवरेस्ट है. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट हिमालयाज ऑल्सो. तो हिमालयाज कहाँ पे? इंडिया में हिमालयाज हैं, ठीक है, और इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड. The people living in the Himalayan regions practice different religions. This is the Buddha Park, a popular tourist attraction in Sikkim. Now, आप ये जो पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे बुद्धा की बहुत बड़ी स्टैच्यू है और चारों तरफ पार्क बना हुआ है, पीछे की साइड में माउंटेन्स है. ये हिमालयन रीजन में जो लोग हैं डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो करते हैं, ठीक है. और ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये बुद्धा पार्क है, जो कहाँ पे है? सिक्किम में. ये वन ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस है. टूरिस्ट अगर जब सिक्किम घूमने जाते हैं तो बुद्धा पार्क देखना पसंद करते हैं, ठीक है. देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये तो एनिमेटेड है, एनिमेटेड में इतना ब्यूटीफुल लग रहा है कि पीछे की साइड में माउंटेन्स हैं, ठीक है. लॉर्ड बुद्धा की इतनी बड़ी स्टैच्यू बना हुआ है, चारों तरफ पार्क है, ठीक है. सो दिस इज द बुद्धा पार्क. Where it is located in Sikkim, and it is one of the most popular tourist attraction in Sikkim. Okay, now there are famous plateaus in India too. ये तो हमने किसकी बात की? हिमालयस की बात की ऊपर. Now we will talk little bit about plateaus. There are famous plateaus in India too. This is the Deccan Plateau found in Maharashtra. Now what is plateau? First of all, listen to the pronunciation of plateau.
Once again, okay. A plateau is a raised flat land that looks like a table. It is also called tableland. The three important plateaus of India are Malwa Plateau, Deccan Plateau and Chota Nagpur Plateau. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेट्यू होता क्या है? एक फ्लैट, ये जो आप सरफेस देख रहे हो नीचे पिक्चर में, ये कैसा है? टेबल के जैसा एक सरफेस है, टेबल के जैसा बना हुआ है, ठीक है? इट इज अ रेज्ड फ्लैट लैंड दैट लुक्स लाइक अ टेबल, टेबल के जैसे दिखता है ये लैंड जो है, ठीक है? इसको हम टेबल लैंड भी बोलते हैं। और इंडिया में थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज है। कौन कौन से प्लेट्यूज हैं? आपका मालवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। These three are the most important plateaus of India. Okay, what is a plateau? It is a raised flat land, एक ऐसी land जो टेबल के जैसे दिखती है हमें, उसे हम plateau बोलते हैं, and it is also known as tableland. Okay, now डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ओके, नाउ लुक, people are celebrating Ganesh Chaturthi in Maharashtra. Let's learn more about India's landforms and its people. अब जो महाराष्ट्र में लोग हैं वो क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हिमालयस में, हिमालयन रीजन में लोग क्या बुद्धा को बहुत मानते हैं। देखो हमने यहाँ पे एक स्पिरिचुअल डाइटी देखा, वो कौन है? बुद्धा है। महाराष्ट्र में जो डेक्कन प्लेट्यू है, प्लेट्यूज में हमने देखा कि स्पिरिचुअल जो डाइटी है वो कौन है? गणेश चतुर्थी। मतलब गणेश चतुर्थी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब गणेश जी है। सो हम डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ लैंडफॉर्म? फर्स्ट ऑफ ऑल, लिसन टू द प्रोनाउंसिएशन। Landforms. Okay, once again. Yes. So 1/4 of the Earth's surface is covered with land. You all know about our Earth. हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है, कि मैप्स के बारे में पढ़ा था, और इसमें हमने लैंड ओशंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। तो हमारा जो 1/4 पार्ट है अर्थ का, वो किससे कवर्ड है? लैंड से कवर्ड है। बाकी का 3/4 एरिया किससे कवर्ड है? वो कवर्ड है ओशियन से, पानी से। द लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर, बट जो ये लैंड है हर जगह सेम नहीं है। देयर आर माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स। माउंटेन्स, आप सबने माउंटेन्स देखे होंगे, ठीक है, मूवीज में देखे होंगे, पिक्चर्स में देखे होंगे। माउंटेन्स बहुत ही ऐसे उभरे हुए से होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े से होते हैं, ठीक है, मोस्टली स्नो से कवर्ड होते हैं। ओके, प्लेन्स जो एकदम प्लेन एरिया होता है, ठीक है। अब जब उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली का एरिया जो है प्लेन एरिया है। डेजर्ट्स, हमारे राजस्थान में डेजर्ट से आप देखते हो मिट्टी की कितनी सारी रेतें होती है, ठीक है। रेगिस्तान, प्लेट्यूज, मैंने आपको बताया। टेबल लैंड, ऐसा लैंड जो उभरा हुआ होता है और टेबल की शेप में होता है, उसको हम प्लेट्यूज बोलते हैं। एंड आइलैंड्स, आइलैंड्स ऐसा लैंड जो चारों तरफ से पानी से कवर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? Islands. These landforms occur due to natural process such as erosion, wind, rain, weather conditions such as ice, frost and chemical actions. ये सारे landforms different natural process की वजह से होता है, जैसे कि erosion हो गया, wind की वजह से हो गया, रेन की वजह से, बारिश की वजह से, या फिर different weather conditions की वजह से हो जाता है, ठीक है। The Indian landforms can be divided into 6 physical divisions. इंडिया के जो landforms है, हमारा जो इंडिया है उसमें 6 physical land divisions है landforms का। क्या क्या है? देखिए, the northern mountains, the northern plains, Thar desert, peninsular plateau, the coastal plains and the islands. नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ डायरेक्शन में है, माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, इसलिए नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स माउंटेन्स के नीचे हैं हमारे। ये मैंने आपको बताया, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र का जो एरिया है वो कैसा एरिया है? सॉरी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, वो कौन सा एरिया है? नॉर्दर्न प्लेन्स। यहाँ की जो लैंड है एकदम प्लेन लैंड है, यहाँ पे कोई ऐसे माउंटेन नहीं है, प्लेट्यू नहीं है, एकदम प्लेन एरिया है, ठीक है, फ्लैट लैंड है। थार डेजर्ट, हमारा जो राजस्थान का एरिया है, वो कौन सा एरिया है? कौन सा लैंडफॉर्म है यहाँ पे? थार डेजर्ट है। पेनिनसुलर प्लेट्यू,
पेनिनसुलर, अब आप जब अपनी हायर क्लासेस में जाओगे तो आप पेनिनसुलर का मीनिंग अच्छे से समझोगे कि क्या होता है पेनिनसुलर, ठीक है। ऐसा लैंड जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो और एक साइड से लैंड से घिरा होता है, उसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। हमने इंडिया का मैप देखा था लास्ट चैप्टर में, उसमें क्या था, इंडिया 3 साइड से वाटर से कवर्ड था और नॉर्थ साइड में किससे कवर्ड था, वो लैंड से कवर्ड था। तो ऐसे ऐसा लैंड जो 3 साइड से वाटर से कवर होता है उसको हम पेनिनसुलर बोलते हैं। तो इंडिया में पेनिनसुलर प्लेट्यू है, मतलब कि प्लेट्यूज बने हुए हैं टेबल लैंड से। कोस्टल प्लेन्स जो समुद्र के आसपास का इलाका होता है उसको हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। एंड आइलैंड्स, आपने लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में सुना होगा। ऐसा आइलैंड क्या होता है, जो ऐसा लैंड एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम आइलैंड बोलते हैं। सो दीज आर द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया। ओके, so name the mountain ranges to the north of India. Do you remember the name of the first person who climbed the highest peak of the world, a part of this range? Now this is your homework. You have to find, आपको name करना है mountain ranges, ठीक है। Name the mountain ranges to the north of India. North of India में कौन सी mountain ranges हैं? अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी है, ठीक है। Name the mountain ranges to the north of India, and you have to write the name of the first person who climbed the highest peak of the world. Which is the highest peak of the world? It is Mount Everest. Okay, this is your homework. I will ask you tomorrow about it. Okay. So what what we shall learn about, in this chapter, we will learn about the physical divisions, the northern mountains in India and the peninsular plateaus in India. I have told you about the major landforms of India, and from those 6 major physical divisions of India, we will talk about the northern mountains and the peninsular plateaus of India in this chapter. Okay, so in the northern mountains in India, we will talk about the greater Himalayas, the middle Himalayas, and the outer Himalayas there. Okay, so and in the peninsular plateaus in India, we will talk about the central highlands and the Deccan plateau. Okay, now like we will talk in Himalayas, we will talk about the rivers which originate from the greater Himalayas. Okay, pine and deodar, fruits और टेरेस फार्मिंग जो हिमालयाज में होती है, वो इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यूज में हम मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे। और कि प्लेट्यूज में हमें मिनरल्स मिलते हैं, जो सोना, कोयला, ये सारी चीजें हैं। आयरन, स्टील जो है, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, प्लेट्यूज में मिलता है, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अबाउट द नॉर्दर्न माउंटेन्स इन इंडिया एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन इंडिया। So start with landforms of India. I already told you the meaning of landforms. Landform मतलब land area, 3/4 area हमारा हमारे वर्ल्ड में क्या है, लैंड है। और ये जो लैंड्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, आइलैंड, प्लेन्स। Okay, so our country India has various landforms that make it unique and interesting. हमारी जो कंट्री है इंडिया, यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं, जिस वजह से हमारा जो इंडिया है बहुत ज्यादा यूनिक है और इंटरेस्टिंग बनाते हैं हमारे लैंडफॉर्म को, हमारे इंडिया को। Landforms of India can be grouped under 6 divisions. I already told you about this divisions कि हमारे जो लैंडफॉर्म्स हैं इंडिया को, उसको 6 डिविजन्स में पार्ट आउट किया हुआ है, ग्रुप किया हुआ है। These are the northern mountains, the northern plains, the Thar desert, the peninsular plateau, the coastal plains, and the islands. We have talked about mountains. What these are the mountains. Okay, northern plains. Now just look at what are northern plains. First of all, listen to the pronunciation. Northern plains.
The northern plains of India lies to the south of the Himalayas. It has fertile soil which is suitable for agriculture. ये जो आप एरिया देख रहे हो इंडिया का, ये एरिया कैसा है? ये हिमालयस का एरिया है, ये फिर एंड होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट होती है। यहाँ की जो सॉइल होती है बहुत फर्टाइल होती है, मतलब यहाँ पे जो हम एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं, ठीक है। द थार डेजर्ट, यू ऑलरेडी अबाउट, आप सबने डेजर्ट्स देखे ही होंगे, रेगिस्तान देखे ही हैं, हम जब बीकानेर में रह रहे हैं तो हमने देखा है। द थार डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेट्यूज, प्लेट्यू के बारे में बताया, टेबल लैंड, टेबल की जैसी जो लैंड स्ट्रक्चर होती है टेबल के जैसे, उसे हम प्लेट्यू बोलते हैं। पेनिनसुलर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडिया 3 साइड से वाटर से कवर है और एक साइड से लैंड से कवर है, that's why we call India as the as peninsular also. Okay, the coastal plains, what are the coastal plains? Now look at the meaning of the coastal plains. Coastal plains. The coastal plains are low, flat lands near a sea or an ocean. ऐसा एरिया जो सी और ओशियन के पास का होता है उसको हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं। Coastal plains of India are located along the Arabian Sea coast and the Bay of Bengal coast. जो आपका वेस्ट डायरेक्शन है इंडिया का, वहाँ पे अरेबियन सी है, ठीक है, वहाँ पे, और ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। इट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स। जो ईस्ट डायरेक्शन में हम जो सी के पास का एरिया उसको हम ईस्टर्न घाट बोलते हैं, और जो वेस्ट डायरेक्शन में उसको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं। इट रिसीव सीजनल बट हैवी रेनफॉल, ऐसा एरिया, यहाँ इन एरियाज में रेनफॉल्स बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और ये जो एरिया है बहुत ज्यादा ह्यूमिड होते हैं, मतलब कि चिपचिपे से एरिया होता है। ओके, नाउ दिस इज द मैप ऑफ इंडिया शोइंग द नॉर्दर्न माउंटेन्स। ये जो आप ब्राउन वाली लाइन देख रहे हो, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। दिस, ये जो आप वाइट ब्राउन कलर की जो आप ये लाइन देख रहे हो, पूरा ये जो लाइन है, यहाँ पे क्या है, हिमालयस है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है हिमालयस और यहाँ पे खत्म होता है। देखो कितनी बड़ी रेंज है हिमालयस की, यहाँ पे हिमालयस ही हिमालयस है, सारे बहुत सारे माउंटेन्स ही माउंटेन्स है, ये जो एरिया है, ठीक है, इनको हमने डिवाइड कर रखा है ना। देखो यहाँ पे जो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है उसको भी हम यहाँ पे इन्होंने लोकेट कर रखा है। देखो नेपाल में क्या है, माउंट एवरेस्ट, ये क्या है, नेपाल का, नेपाल है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। अन्नपूर्णा देखो नेपाल में है, कंचनजंगा भी नेपाल में है, ठीक है, तो ये सारी माउंटेन रेंजेस ही हैं, भूटान से भी होते हुए जा रही है। और ये देखो इंडिया में कौन सा है, नंगा पर्वत। सो these were one of the highest mountain peaks of India, ठीक है। देखो फर्स्ट माउंट एवरेस्ट है, सेकंड कंचनजंगा, थर्ड देखो नंगा पर्वत है। हम इनकी डिस्टेंस, ये हाइट से देख सकते हैं। ओके, सो दीज आर द माउंटेन रेंजेस। ओके, इंडिया की माउंटेन रेंजेस है ये। The northern mountains. Now, what are the northern mountains? Okay, the northern mountains. In the northern part of India lie the mighty Himalayas, a long row of mountains that stretches from Jammu and Kashmir in the north to Arunachal Pradesh. We have looked in the map of India and we have looked at the Himalayas. Okay, mountain ranges देखिए हमने, जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होती है और हमारे इंडिया का अरुणाचल प्रदेश जो है ईस्ट में, वहां तक क्या है, ये माउंटेन रेंजेस बनी हुई है। कितनी बड़ी माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। So along its way, it crosses Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, and the northern part of the West Bengal. और ये along its way मतलब ये जो हिमालयन रेंजेस है, जम्मू एंड कश्मीर में है, लद्दाख में है, और इसके बाद कौन कौन सी हमारे स्टेट्स को क्रॉस करते हुए जाता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न पार्ट और अरुणाचल प्रदेश ऑब्वियसली। आफ्टर
अरुणाचल प्रदेश इट बेंड्स साउथवर्ड्स एंड स्ट्रेचेस टिल द स्टेट ऑफ मिजोरम। फिर ये देखो अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या करता है, ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है, ठीक है, नीचे की साइड में साउथ की डायरेक्शन में बेंड हो जाता है, जैसे कि यहाँ ये सपोज जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ऐसे 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 जाते हुए कि हमने उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम से होते हुए ये नॉर्दर्न वेस्टर्न बंगाल, फिर अरुणाचल प्रदेश, दिस इज अरुणाचल प्रदेश ना। अब ये क्या है, थोड़ा सा साउथ की साइड में बेंड हो जाता है और ये कौन से स्टेट पे आ जाता है, मिजोरम में आ जाता है, ठीक है, मिजोरम भी एक स्टेट का नेम है। The Himalayas are divided into 3 rows of mountains that run alongside each other. Now ये जो हिमालयाज है 3 rows में divided है, ये जो हमारी mountains है 3 rows में divided है, जैसे कि ये first, ये second, ये थर्ड। मैं आपको फिर से एक बार मैप दिखाती हूँ, आपके बुक में जो मैप बना हुआ है वो दिखाती हूँ, तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। नाउ जस्ट लुक एट दिस मैप। ये ब्राउन कलर की आप जो लाइंस देख रहे हो ना, ये जो बनी हुई है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये लद्दाख है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है, फिर ये नेपाल का एरिया है, ये सिक्किम है, ठीक है, थोड़ा बहुत वेस्टर्न नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बंगाल भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, ठीक है। तो ये 3 लाइंस बनी हुई है, थ्री ब्राउन कलर्स की लाइंस बनी हुई है ना, तो ये 3 रोज में क्या है, ये रोज होती है, ये 3 रोज में डिवाइडेड है, ठीक है। हिमाद्री, इसको भी हमने नेम दे रखा है, ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक रेंजेस। ओके, वी विल टॉक अबाउट इट। एट द टॉप क्लोज टू द चाइना बॉर्डर आर द ग्रेटर हिमालयास। हमने हिमाद्री के बारे में मैंने आपको बताया, जो सबसे ऊपर वाली जो रेंज बनी हुई है, ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया है, हिमाद्री नाम दिया है, ठीक है। उसके बाद हिमालयास, द ग्रेटर हिमालयास, जो सबसे बड़े, ग्रेटर मतलब जो सबसे बड़ा है, ग्रेटर हिमालयास को हमने क्या नाम दिया हुआ है, हिमाद्री। नेक्स्ट टू द ग्रेटर हिमालयास आर द मिडल हिमालयास। अब ये वाला क्या हो गया, ग्रेटर हिमालयास हो गया। अब इसके बाद कौन सा मिडल में जो है, मिडल हिमालयास को हमने नेम दे रखा है हिमाचल। एंड देन लाई टू द आउटर हिमालयास, उसके बाद हम जो आउटर एकदम नीचे की साइड में जो माउंटेन रेंज बनी हुई है, उसको हमने आउटर हिमालयास को नेम क्या दे रखा है, शिवालिक। नाउ जस्ट लुक एट दिस इज हिमाद्री, दिस इज हिमाचल एंड दिस इज शिवालिक। ओके, देखो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है आपका, ग्रेटर हिमालयास हिमाद्री में है, फिर मिडल हिमालयास हिमाचल में, देखिए नंगा पर्वत कंचनजंगा हिमाचल में है, देन लाइट टू द आउटर हिमालय शिवालिक, अन्नपूर्णा कहाँ पे है, शिवालिक में, आउटर हिमालयास में। ओके, दिस इज अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। नाउ द ग्रेट हिमालयाज एंड हिमाद्री। ये ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री के बारे में पढ़ते हैं हम, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ते हैं पहले इसके बारे में, ग्रेट हिमालयाज के बारे में। The Great Himalayas or Himadri. The Great Himalayas comprise the highest mountain ranges of the Himalayas. Himalayas की जो सबसे highest mountain ranges है वो comprise करता है, यहाँ पे जो Great Himalayas के अंदर आता है। Mount Everest, the highest peak in the world, lies in the Greater Himalayas. जो highest mountain peak है हमारे world की, that is Mount Everest, वो कहाँ पे lie करता है, कहाँ पे है वो, the Great Himalayas और Himadri. Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay were the first people to climb Mount Everest in the year 1953. Edmund Hillary और Tenzing Norgay, ये दोनों फर्स्ट पीपल थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्या किया था, क्लाइंब किया था। कौन से ईयर में क्लाइंब किया था, कौन से ईयर में वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के उसकी पीक पे गए थे, 1953 में। A 13-year-old Indian schoolgirl, Malwat Purna, became the youngest schoolgirl to climb the Mount Everest in the year 2014. Now look at this. Malwat Purna, इंडियन स्कूल गर्ल, 13 इयर्स की थी ये ओनली, और इस ये सबसे यंगेस्ट स्कूल गर्ल है जिसने माउंट एवरेस्ट, इंडियन है, जिसने माउंट एवरेस्ट को क्या किया,
क्लाइंब किया था, कौन से ईयर में क्लाइंब किया था? 2014 में. सो who were the first persons to climb the highest mountain peak, that is Mount Everest? Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay were the first people. कौन से ईयर में किया था उन्होंने क्लाइंब? 1953 में. और जो यंगेस्ट स्कूल गर्ल है जिसने क्लाइंब किया था, कौन थी वो? मालवत पुरना, इंडियन स्कूल गर्ल थी. ओके. Now we will talk about the Great Himalayas today. The Greater Himalayan Range is the highest of the three rows of the Himalayas. The जो Greater Himalayan Ranges है, ठीक है, जो पहली रो है वो highest है इनमें से. Mount Everest, the highest mountain peak in the world, is located in the Greater Himalayas. Mount Everest जो आपकी highest mountain peak है, mountain क्या है? देखो क्या है? Mountain. Mountain is an elevated surface is in the form of a peak. The highest mountain in the world is Mount Everest. Now, just look at this picture. इसका जो landform है, यहाँ ऊपर तक जाते जाते एक ऐसे peak बन जाता है ना, एक ऐसी चोंच बन जाती है, peak. इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे land surface को हम mountain बोलते हैं. Okay? Mount Everest जो है highest mountain peak है हमारी world में, और कहाँ पे लाई करता है? Great Himalayas में. Nanga Parbat, Annapurna and Kanchenjunga are the other important peaks of the Greater Himalayas. और भी कौन सी important माउंटेन पीक्स है? नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा एंड कंचनजंगा. ये और भी इम्पोर्टेंट आपकी माउंटेन पीक्स है जो ग्रेटर हिमालयाज में क्या करती है? लोकेट करती है. Now, did you know in 2014 we already talked about this कि जो मालवत पूर्णा थी 2014 में only 13 years की थी, 13 years 11 months approximately 14 years की थी. उसने वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन पीक में क्या किया था? वो उसने क्लाइंब किया था, और ये सबसे यंगेस्ट इंडियन बनी और यंगेस्ट इंडियन गर्ल बनी जिसने इतनी बड़े माउंटेन सब वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन पीक को क्लाइंब किया. ओके. The Greater Himalayan Ranges is permanently covered with snow. जो Greater Himalayan Ranges है वो हमेशा snow से covered रहता है. It is extremely cold and difficult to live here. बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे cold रहता है. Okay? Extremely cold and difficult to live here. बहुत ज्यादा कोल्ड रहता है और यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ ये जो माउंटेन्स हैं हमेशा बर्फ की मोटी मोटी परतों से ढका हुआ रहता है. ठीक है, बर्फ और स्नो की मोटी मोटी परतों से ढका हुआ रहता है. विच मूव स्लोली ओवर द लैंड कॉल्ड ग्लेशियर्स. जो धीरे धीरे पिघलता है, ठीक है, धीरे धीरे लैंड के साइड में जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर्स बोलते हैं. Often the lower portion of these glaciers melt in the heat, leading to the formation of rivers. और जैसे जैसे धीरे धीरे ये जो ग्लेशियर्स हैं, ये जो शीट्स हैं, बर्फ की मोटी मोटी परतें जो बन जाती है, ठीक है, एक लैंड फॉर्म में हो जाती है, और जब ये धीरे धीरे मेल्ट होती है, पिघलती है, तो उससे क्या बनती है? उससे रिवर्स बनती है. Many important rivers such as the गंगा, जो आप गंगा नदी बोलते हो, यमुना बोलते हो, और जो ब्रह्मपुत्र बोलते हो, ये इन ग्लेशियर्स से निकलते हैं. ये जो ग्रेटर हिमालयाज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इन्हीं ग्लेशियर्स से आपकी जो वर्ल्ड की इन्हीं ग्लेशियर्स से, ये जो ग्लेशियर्स हैं, ग्रेटर हिमालयाज के जो ग्लेशियर्स हैं, बर्फ की मोटी मोटी परतें हैं, ये जो पिघलती है उससे रिवर की फॉर्मेशन होती है. और हमारी इंपॉर्टेंट रिवर्स जो इंडिया की है, जो ग्लेशियर्स से आई है, वो कौन कौन सी है? गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र. ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो इन ग्लेशियर से, ग्रेटर हिमालयाज से पिघल के हमारा रिवर का उन्होंने फॉर्मेशन किया है. ओके. सो हमने आज क्या पढ़ा? We have talked about the major landforms of India and what we are going to study in this chapter, and after that we talked about mountains and northern Himalayas and a type of the greater Himalayas, which is also called Himadri. We have talked about the greater Himalayas. Now tomorrow we will talk about the middle Himalayas and the Shivalik range, the outer Himalayas. Okay. So please read the chapter carefully, and if you find any doubt, you can ask me tomorrow. Read the chapter. Take care of yourself. Bye bye, beta.